Hello my dear students, how are you? Hope you all are fine and doing well at your home. Today we are going to do chapter number 12 of English grammar, and the name of chapter is more about adjectives. As you have already done in chapter 10 about the adjectives. So you just tell me what are adjectives? Yes, describing words are called adjectives, and the words which add something to the noun are called adjectives. Here we will do something more about adjectives, like some pronouns can be used as adjectives to show possession. Means कुछ ऐसे pronoun होते हैं जो possession show करने के लिए as adjective use किए जाते हैं. For example, this is her dog. You remember that in the chapter of pronouns we have done her pronoun. So here the pronoun is her and it is showing possession and it's adjective here. Now possessive, the words my, your, are, his, her, its and their are used to say that something belongs to someone. It means ये जो words हैं my, your, are, his, her, its and their, ये सब किसके लिए यूज होते हैं? ये बिलोंगिंग शो करते हैं. हमने प्रोनाउंस में भी ये चीज की थी. सो हियर एज एडजेक्टिव दीज आर आल्सो यूजिंग एज possessive and these are showing belonging. Here is an example. Rohit is reading his book. Here his is pronoun and it is showing possessive. Last time we learned that adjectives are describing words. Can you name some? Beautiful, long, happy. There are some words that show belonging. Belonging? How? Let me explain. Is that your book, Ravi? Yes, ma'am. And this? This is his book, ma'am. Look, class, we made use of two words showing belonging. Your and his. Wow, and I helped you in that. Yes, Ravi. Now, who will tell me some more such examples? Ma'am, my pencil is red in color. Wonderful, Pooja. So one more is my. What else? Ma'am, our class is the best. That it is. And the word is our. Like it was his book, this is her notebook. Yes, correct. And we have her. When there are many people, we use their. And when we talk of things, we use it. So all of them together would be Your, his, my, our, her, their, and it. good. That is all for today. We will talk about something new tomorrow. Now look at these pictures, read the sentences. That is their cat. That is their cat. ये जो cat है वो उनकी है. So ये belonging show कर रही है, मतलब किसी को वो belong करती है. So here their word their their is used as an adjective. ये pronoun है और ये as adjective use हुआ है. Next, this is our neighbor's house. ये जो house है वो किसका है? neighbor का है. So it is showing belonging. तो neighbor का house है. So here the word are is used as an adjective और ये pronoun भी है. In the next picture, look at that tree. Jia, its leaves are green. जो इसकी leaves हैं, tree की जो leaves हैं, its. So its किसके लिए use हुआ है? Tree की leaves के लिए. तो जो क्या है? Green है. So its जो है वो क्या show कर रहा है? Possession show कर रहा है. So this is adjective here. Rohan must have come home. That is his cycle. जो his है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? रोहन के लिए. तो उसकी साइकिल की यहाँ बात हो रही है. So it is showing possession, his. Charu aunty must be here too. This is her car. तो चारू आंटी भी यहाँ होंगी. ये उनकी कार है. This is her car. Her is showing belonging to चारू आंटी's car. So her जो है यहाँ पर वो यूज़ हुआ है as an adjective. With the next picture,
लुक हारिफ, दैट इज़ योर एरोप्लेन। वो हारिफ से पूछ रही है कि हारिफ क्या ये तुम्हारा एरोप्लेन है? तो मीन्स जो एरोप्लेन है वो किसको बिलोंग करता है? हारिफ को। तो यहाँ उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया हारिफ के लिए? योर। सो योर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये पोजीशन शो कर रहा है, प्रोनाउन भी है, सो इट इज एन एडजेक्टिव है। ओह यस, देयर इज माई प्लेन। अब जो हारिफ है वो कह रहा है हाँ ये मेरा प्लेन है। तो अब क्या यूज़ हुआ यहाँ पर? कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? माई। माई क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट लुक एट दिस सेंटेंस। The words my, your, are, his, her, its and their are used to say that something belongs to someone. Means ये जो words हैं my, your, are, his, her, its and their, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ये शो करते हैं कि वो मतलब किसी भी चीज़ जो है वो किसी को बिलोंग कर रही है। Now we will solve the book work. Exercise A. Choose a correct word. That is Meera. दिस इज़ डैश डॉग। अब मीरा जो है वो गर्ल है, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते थे एज वी हैव यूज्ड इन द चैप्टर ऑफ प्रोनाउंस, जो गर्ल के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है वो हर यूज़ होता है, और यहाँ पर वो क्या है? एडजेक्टिव। सो हर इज़ द राइट आंसर हियर। आई एम वेयरिंग डैश न्यू ड्रेस हियर। आई है तो आई के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? माई। सो ये एडजेक्टिव भी है यहाँ पर, माई। I am wearing my new dress. Next, Harish is reading his or its book. Of course, his. हरीश बॉय है तो उसके लिए हम his pronoun यूज़ करते हैं बॉय के लिए, और यहाँ पर हमें एज एन एडजेक्टिव यूज़ करना है कि वो उसकी बिलोंगिंग शो कर रहा है। तो here we will use his. The cat sleeps in dash basket. My और its. उसकी कैट की जो है बास्केट उसमें सो रही है, वो बिलोंगिंग शो कर रहा है। कौन सा वर्ड शो करेगा बिलोंगिंग? इट्स। नेक्स्ट फिफ्थ, वी आर गोइंग इन डैश न्यू कार। हम किस में जा रहे हैं? न्यू कार किसकी है? हमारी। तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? आर या इट्स? आर, हमारी। तो जो आर वर्ड है वो क्या शो कर रहा है? बिलोंगिंग। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, यूज द वर्ड्स इन द बुक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट, मिशा इज होल्डिंग डैश टेडी बियर। अब मिशा गर्ल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर टेडी बियर। यूसुफ इज़ वेयरिंग डैश न्यू कैप, हिज न्यू कैप। द क्रोज बिल्ट डैश नेस्ट इन द ट्री। अब क्रोज यहाँ पे प्लूरल है, सो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? देयर। नेक्स्ट फोर्थ, डू यू नो डैश वे होम। यू के लिए हम यहाँ इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? योर वे होम। फिफ्थ, कैन यू सी दैट मैन ऑन द स्कूटर। क्या तुम स्कूटर पे उस मैन को देख सकते हो? ही इज डैश नेबर, हमारा नेबर है, आर नेबर। नाउ सिक्स्थ इज, आई बोट अ न्यू नोटबुक डैश नोटबुक इज येलो एंड वाइट। यहाँ पे मैंने नोटबुक खरीदी आए, तो अब मैं अपनी ही नोटबुक के बारे में बताऊंगी। सो इट्स माई नोटबुक इज़ येलो एंड वाइट। अब जो नोटबुक है वो किसे बिलोंग कर रही है? मुझे कर रही है, माई। सो माई यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। सेवंथ, द डॉग इज स्क्रैचिंग डैश बैक। अब डॉग किसकी बैक स्क्रैच कर रहा है? खुद की कर रहा है, इट्स। सो इट्स इज एडजेक्टिव है। नाउ सी एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। करेक्ट एडजेक्टिव को आपको चूज करना है। फर्स्ट, सुरभि इज टॉकिंग हिज और हर डॉग फॉर अ टेकिंग हिज और हर डॉग फॉर अ वॉक। यस, सुरभि इज गर्ल, सो फॉर दैट वी विल यूज हर। और हर जो है वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? बिलोंगिंग शो कर रहा है। जो सुरभि है वो अपने डॉग को वॉक के लिए लेकर जा रही है। They are going to their or my grandfather's house. There, we will write here there because they के साथ they plural है तो हम वहाँ there use करेंगे। अगर यहाँ I होता I am going to तो हम use करते my, but यहाँ पर they है तो we will use there. And there is showing belonging to grandfather's house. So it's an adjective. Next, third is Saurabh is riding his or her or his bicycle. सौरभ बॉय है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? हिज। फोर्थ इज, वी स्टडी हियर, दिस इज देयर और आर स्कूल। वी हम स्टडी कर रहे हैं तो प्लूरल हुआ, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा? आर। दिस इज आर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। सो
आर जो है वो किसको क्या शो कर रहा है, बिलोंगिंग, स्कूल के साथ बिलोंगिंग शो कर रहा है. सो दिस इज एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट नाउ फिफ्थ इज यू हैव वर्कड वेरी हार्ड, नाउ ईट माई और योर डिनर. तुमने वर्क हार्ड किया, मेरा डिनर खाओ, नहीं योर डिनर. सो वी विल राइट योर. सिक्स, वाई इज योर इट्स बैक सो हैवी, योर. सेवंथ, शी फॉरगॉट टू कंप्लीट माई और हर होमवर्क. शी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ, हर होमवर्क. इट इज़ गोरी इज गिविंग इट्स और हर डॉग अ बाथ. गोरी इज गर्ल, गोरी के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हर. और यहाँ पर जो हर है वो क्या शो कर रहा है, बिलोंगिंग शो कर रहा है कि वो अपने डॉग को बात देने के लिए दे रही है. सो इट्स एडजेक्टिव हियर. नेक्स्ट नंबर 9, वी वॉन आर और हिज मैच बाय 4 goals. वी के साथ हम यूज़ करेंगे आर. It's also showing belonging and it's an adjective. Johan has completed his test. That is his or my answer sheet. जोहन ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है तो वो आंसर शीट किसकी होगी, जोहन की होगी. सो वी विल राइट हियर हिज. यस, नाउ लुक हियर, रीड दिस कन्वर्सेशन. आपको ये कन्वर्सेशन को रीड करना है. पोलाइट वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं. सान्या मीट्स यशिका आउटसाइड हर हाउस. सान्या यशिका से उसके घर के बाहर मिलती है. सान्या कहती है गुड मॉर्निंग. यशिका ऑल्सो सेज गुड मॉर्निंग. सान्या कहती है कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो. आई एम न्यू है, मैं यहाँ न्यू हूँ. वेयर इज़ मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल कहाँ है. यशिका से इज़ मॉडल स्कूल, कम अलॉन्ग विद मी, आई स्टडी देयर. मेरे साथ आओ, मैं वहाँ स्टडी करती हूँ. सान्या कहती है थैंक यू. अब यहाँ पर पोलाइट वर्ड कौन कौन से हुए, गुड मॉर्निंग, प्लीज़, थैंक यू. नेक्स्ट, सोमा गोज़ टू बाय सम एग्स. ये नेक्स्ट कन्वर्सेशन है. सोमा गुड इवनिंग अंकल, अंकल को विश करती है गुड इवनिंग. प्लीज़ गिव मी 8 eggs. अंकल से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ गिव मी 8 eggs, मुझे 8 eggs दी. शॉपकीपर बोलता है हियर यू गो. ही गिव सुमा अ पैकेट. सुमा को एक पैकेट देते हैं. इट स्लिप्स फ्रॉम हर हैंड, उसके हैंड से स्किप हो जाता है वो पैकेट. द एग्स फॉल ऑन द फ्लोर एंड ब्रेक. और जो एग्स होते हैं वो फ्लोर पर गिर जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं. सुमा ओ डियर आई एम सो सॉरी. अब सुमा से मिस्टेक हुई तो वो सॉरी बोलती है. She says sorry, I'm so sorry, I have broken so many of them. मैंने बहुत सारे इसमें से तोड़ दिए हैं. शॉपकीपर माई गुडनेस बट अ मैस. सोमा लेट मी क्लीन इट अप, मुझे इसे क्लीन करने दें. सो जब भी आप किसी को विश कर रहे हैं मॉर्निंग में, यू से गुड मॉर्निंग. इन द इवनिंग यू विल से गुड इवनिंग. आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून. और जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो यू विल यूज़ प्लीज़. आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो आपको थैंक यू कहना चाहिए उन्हें. एंड इफ़ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, देन यू शुड से सॉरी. नेक्स्ट, शॉपकीपर सेज इट्स ऑल राइट, डोंट वरी, चिंता मत करो. हेयर आर सम मोर एग्स, यहाँ पर और एग्स हैं तुम्हारे लिए. सोमा थैंक यू. सोमा उन्हें थैंक यू बोलती है. द वर्ड्स इन कलर आर पोलाइट वर्ड्स. जो भी ये आपको कलर वर्ड्स शो हो रहे हैं, दीज आर पोलाइट वर्ड्स. अभी हम इनके प्रैक्टिस करेंगे बाय फिलिंग दिस बुक वर्क. ए एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर्स, क्लूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बुक्स. आपको बॉक्स में ऑप्शन भी दिए गए हैं, यू हैव टू फिल द वर्ड्स. फर्स्ट, डैश आई होप आई डिड हर्ट यू. मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने तुम्हें कोई हर्ट नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो गर्ल, उसके ऊपर पैर उसे मतलब बाय मिस्टेक रखा गया तो वो सॉरी बोल रही है. सॉरी आई होप आई डिडंट हर्ट यू. सेकेंड, अब क्लास में टीचर एंटर कर रही है तो बच्चे विश कर रहे हैं, स्टूडेंट्स विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर जोशी. थर्ड, यहाँ पे मे आई लुक एट दैट बुक. अब यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रही है गर्ल लाइब्रेरियन से या शॉपकीपर से, क्या मैं ये बुक देख सकती हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही है. मे आई लुक एट दैट बुक प्लीज़. सो हियर वी हैव लर्न दैट कि जो पोलाइट वर्ड्स यूज़ हुए हैं इन कन्वर्सेशन में, द वर्ड्स आर गुड मॉर्निंग, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी. ओके, these are polite words. Now we are going to write an application.
आपने सुना होगा जब भी आपको स्कूल में लीव लेनी होती है, छुट्टी लेनी होती है, तो आपको क्या राइट करनी होती है? एप्लीकेशन राइट करनी होती है, परमिशन लेनी होती है उस छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हम कौन सी राइट कर रहे हैं? सिक लीव की राइट कर रहे हैं। समटाइम्स आप कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, फीवर होता है या हेडेक होता है, कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? आप एक लीव राइट करोगे, ठीक है, एक एप्लीकेशन राइट करोगे और आप वो टीचर को सेंड करोगे। ओके, द फॉर्मेट आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। दिस इज़ फॉर योर फर्स्ट टाइम। आप फर्स्ट टाइम राइट कर रहे हो, आपने फर्स्ट क्लास में नहीं किया है, so just listen to me very carefully. Firstly we will write date 24th August 2020. नेक्स्ट हम किससे एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं? हमारी स्कूल अथॉरिटीज़ को। तो प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, बी आर ग्लोबल स्कूल, आपके स्कूल का नेम, आपका स्कूल कहाँ है? सिरसा। फिर आप किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव। सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर लीव। अब प्रिंसिपल सर हैं या मैम है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैम या फिर सर। आई हेयर बाय से दैट, I hereby say that. Here I want to make you one thing clear कि आप जो भी राइट कर रहे हैं, देखिए मैंने रेड लाइन के बिल्कुल साथ साथ लिखा है 24th अगस्त, द प्रिंसिपल, बी आर ग्लोबल स्कूल, सिरसा, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड मैम, आई हेयर बाय। तो मैंने सब बिल्कुल रेड लाइन के साथ स्टार्ट किया है, तो आप भी इसी तरह से इसी फॉर्मेट में लेफ्ट साइड एप्लीकेशन राइट करेंगे। ओके, सो आई हेयर बाय से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मैं जो है कल से फीवर मुझे हो रहा है, कल लास्ट नाइट से। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। स्कूल आने के मतलब अनेबल हूँ स्कूल आने के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। जितने भी डेज़ की लीव लेनी हो, आई हैव रिटन फॉर 1 डे, यानी कि एक दिन के लिए। 2 डेज़ की लेनी हो तो यू कैन राइट 2 डेज़। ठीक है, वैसे डिपेंड अपॉन योर हेल्थ कि आपको कितनी लीव्स चाहिए। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? थैंकिंग यू, थैंक्स करेंगे। योर्स ओबीडेंटली, देन यू विल राइट योर्स ओबीडेंटली। फिर आप अपना नेम लिखेंगे। मैंने यहाँ XYZ राइट किया है, बट आप क्या करेंगे? आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका नेम है। देन क्लास सेकेंड, आपकी क्लास और जो आपका रोल नंबर है, आपको रोल नंबर अलॉट हुआ है तो आप वो राइट करेंगे। और ये एप्लीकेशन जब भी हमें कोई लीव लेनी होती है स्कूल से, देन वी राइट इट टू द टीचर। हम टीचर को सेंड करते हैं स्कूल में, सो दैट कि हमारे एब्सेंट मार्क ना हो, कि हमारी क्या हो, लीव मार्क हो। और ये जब कभी भी आप में से कोई स्टूडेंट बाय चांस ऑनलाइन क्लास मिस करता है, नहीं उसकी तबीयत सही नहीं है, तो आप ये राइट करके मैम को सेंड कर सकते हैं। ओके, इससे आपको फॉर्मेट भी आ जाएगा। यू जस्ट डू द प्रैक्टिस फॉर दिस। बिल्कुल रेड लाइन के साथ लिखेंगे। एवरीवन्स राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एज आई हैव रिटन। थैंकिंग यू इन द न्यू लाइन, योर्स ओबीडेंटली इन द न्यू लाइन। आपका नेम न्यू लाइन में आएगा, क्लास सेकेंड न्यू लाइन में आएगा, रोल नंबर भी न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, जो जो मैंने न्यू लाइन यूज़ की है, प्लीज़ आप उसके लिए न्यू लाइन ही यूज़ करेंगे। ओके, राइट केयरफुली।